Hello, my dear students. How are you all doing today? My name is Pritesh Veera, and I have been in the field of teaching for the last 10 years. I teach economics and business environment at CA Foundation, CA Inter, and of course, CSEET. So today, my dear students, I am going to start with the subject called as business environment. नाम तो सुना ही होगा. So बेटा, business environment in your CSEET is to be studied along with the subject of business economics. So beta, let us first understand what do you mean by the word business. चलो बताओ मेरे को. हम सब लोगों ने बिजनेस वर्ड तो डेफिनेटली सुना है. सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो बिजनेस मतलब धंधा, मतलब कैन आई से इट इज एन एक्टिविटी ऑफ व्हाट. सो बेटा, जब भी हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस इज नथिंग एल्स बट कैन आई से इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. क्यों? वेरी सिंपल बेटा, बिजनेस करते क्यों है? पैसों के लिए. एंड कैन आई से दैट वी टर्म इट एज अ प्रॉफिट. सो बेटा, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. ये बोलो हाँ के हाँ. हाँ. सो बेटा, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट्स के लिए करते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप द सेम? चलो अभी आप लोग मुझे बताओ, क्या बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों सेम होते हैं कि दोनों अलग होते हैं? तो सर, बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है. एंड बेटा, ये जो बिजनेस होता है ना, वो ऑलरेडी कोई भी कर सकता है प्रॉफिट्स के लिए, मतलब इट इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप बेटा, entrepreneurship is about starting something new, something innovative, something which is never seen by the people. So beta, business and entrepreneurship सेम नहीं होता है. तो सर, दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूं. I have already explained you what is business. Now let us understand what is entrepreneurship. So, can I say entrepreneurship is a process of setting up, क्या बोला था, old businesses which are already run by many people? No, my dear students, it is a process of setting up new business organization. So बेटा, यहां पर इंपॉर्टेंस किसको है? The word new. And as I told you, it is a business organization. अब बेटा, can I say that entrepreneurship एक तरीके का आर्ट है, एक तरीके का टैलेंट है. एंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, समथिंग विच इज डन बाय द एंटरप्रेन्योर ऑन हिज ओन विलिंगली. अब ये जो पर्पसफुल एक्टिविटी है, दिस कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल और इट कैन ऑल्सो बी डन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जरूरी थोड़ी है कि एक ही पर्सन का आइडिया हो, एक ही पर्सन इनोवेट करे. कैन आई से दैट दिस कैन बी डन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल. एंड बेटा, हाउ इज दिस अ पर्पसफुल एक्टिविटी? व्हाई इज देयर दिस पर्पसफुल एक्टिविटी? द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर. इट इज टू मेक profits and that will be done by production and distribution of goods
goods and services. So my dear students, over here what are you seeing? There are two concepts. One is business, one is entrepreneurship. Business is done by a businessman, something which is already existent in the market, where buying and selling of goods and services takes place to earn profits. Now entrepreneurship is an activity done by an entrepreneur. An entrepreneur is the person who is setting up a new business organization, something which the market has never ever seen. So beta, business and entrepreneurship are not the same. Now when I talk about entrepreneur, it is a purposeful activity which is done either by an individual or by a group of individuals, and it is done to make profits by production and distribution of goods and services. So beta, whenever you talk about an entrepreneur, beta, an entrepreneur is never a job seeker. An entrepreneur is always a job creator. So beta, जॉब सीकर वो होता है जिसको जॉब का तलाश हो, और जॉब क्रिएटर वो होता है जो दूसरों को जॉब दे, तलाश करने वालों को जॉब्स का अपॉर्चुनिटी दे. So but an entrepreneur is a person who is always termed as a job creator. Can I say entrepreneurship is always associated with innovation? But a very, very important point. Can I say when you set up something new, न्यू से मतलब क्या है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, तो ही तो आप उसको एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे. सो बेटा, ये जो इनोवेशन का प्रोसेस है, इज दिस इनोवेशन इन द प्रोडक्ट? यस. सो बेटा, इनोवेशन कहाँ होना चाहिए? इन द प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाए जाएंगे. एंड कैन आई से वी हैव सीन सो मेनी इनोवेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ. लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल फोन. बेटा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, तो माय फादर नेवर गेव मी अ मोबाइल फोन. It was only after clearing my 12th standard that my father actually thought of giving me one. अच्छा, वो टाइम पर जो मोबाइल भी होते थे बेटा, वो कैसे हुआ करते थे? नोकिया 3310, उसके अंदर वो स्नेक गेम होता था, बाउंस का गेम होता था. एंड एट दैट टाइम वी वर रियली हैप्पी विद दोस काइंड ऑफ फोन्स एज वेल. बट अगर आप देखेंगे तो मोबाइल का मार्केट कितना जल्दी से चेंज हो गया. अब जिस दिन मैंने 3310 नोकिया का फोन लिया, उसके 10-15 दिन या 1 महीने के बाद मेरा एक फ्रेंड आया. फ्रेंड ने मोबाइल तो टेबल पर रखा ही रखा, साथ ही साथ उसने ईयरफोन्स नाम का कोई चीज भी टेबल पर रखा. एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट समथिंग लाइक दैट कि मोबाइल के अंदर ईयरफोन्स. तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है? तो ही सेड, अरे मैंने नया फोन लिया रे, उसके अंदर है ना FM रेडियो भी चलता है. And therefore, just to show off, he not only kept the phone on the bench, but also with that, he kept those earphones to let people know, boss, I have the latest one. अच्छा बेटा, उसके बाद अगर आपने देखा रहेगा तो मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरास आने लगे. तो अब थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, एक फोन आया था नोकिया का 6600. अब वो कैमरा वाला फोन. तो मेरा एक फ्रेंड वापस मोबाइल लेकर ऐसा 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 कुछ तो कर रहा था, और मैं सोच रहा भाई ये मोबाइल से क्या कर रहा है. तो पता चला कि अब मोबाइल के अंदर कैमरा आने लगा. सो लुक एट द इनोवेशन प्रोसेस इन अ मोबाइल फोन. फ्रॉम अ सिंपल फोन यूज्ड फॉर कॉलिंग एंड डिस्कनेक्टिंग, it had many functions like an FM, like a camera. फिर आया टच फोन, उसके बाद आया LED स्क्रीन वाले फोन्स, उसके बाद अपना डैश चार्जिंग. अरे बाबा, कैन आई से दैट मोबाइल फोन के अंदर हर 3 महीने के अंदर, हर 2 महीने के अंदर कोई कंपनी नया कुछ लेकर आता है. OnePlus आया तो उसने डैश चार्जिंग लाया.
आईफोन आया तो उसने 3 कैमरा 4 कैमरा लाया। मतलब एवरीबडी इज डूइंग सम काइंड ऑफ एन इनोवेटिव एक्टिविटी इन द प्रोडक्ट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स बेटा। कहना है इसे पहले के जमाने में हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे। I am not even sure if you know what is a floppy disk. You should know about it. Please search it on Google. There used to be a floppy disk which was inserted in the computer's CPU and वहां पर डेटा स्टोर होता था कुछ 7-10 MB का, if I am not wrong. अच्छा, वो उससे हम शिफ्ट होकर गए एक सीडी पर। सीडी के अंदर 700-800 MB स्टोर करने लगे। फिर हम लोग गए पेन ड्राइव पर जिसके अंदर 2, 4, 10, 20 GB स्टोर होने लगा। उसके बाद आया समथिंग कॉल्ड एज अ हार्ड डिस्क। टीबीज के अंदर स्टोरेज हो रही है। और बेटा आज के डेट में अगर आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गूगल ड्राइव, क्लाउड डेटा सर्विसेज, पता नहीं कहां पर स्टोर होता है। So can I say that there has to be an innovation in the product to be termed as an entrepreneur or to be in entrepreneurship because you are creating something new. But बेटा आप मुझे बताओ क्या इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में होना चाहिए? The answer is no. बेटा innovation should be also in the way the product is marketed and the product is sold. So बेटा आज के डेट में इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। प्रोडक्ट के साथ साथ उसको आप किस तरीके से बेचने के लिए मार्केट में प्रेजेंट करते हो वो भी जरूरी है। एंड आई कैन गिव यू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑन दिस। आई एम श्योर वी ऑल नो विक्स। देयर यूज्ड टू बी अ बाम व्हिच वी यूज्ड टू अप्लाई। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। सो बेटा लेट अस टॉक अबाउट विक्स बाम। And can I say in the initial days Vicks was only supposed to be applied on the nose. सर्दी हो गया तो विक्स लगाओ, जुकाम का रामबाम इलाज, ऐसा बोला जाता था। अब बेटा एक टाइम आ गया जब विक्स का मार्केट सैचुरेट हो गया, हर घर के अंदर एक डब्बा पड़ा हुआ है और 1 महीने के अंदर शायद एक डब्बा खत्म होता रहेगा। तो अब विक्स को अगर अपना सेल्स बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इनोवेट करना पड़ेगा, या तो नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा या तो उसको अपना मार्केटिंग बदलना पड़ेगा। और विक्स ने ये दोनों ही किया। विक्स कंपनी ने लाया विक्स इनहेलर, प्रोडक्ट बदल दिया, इनोवेट किया, पर विक्स को बेचने का तरीका भी बदला। अब विक्स का एक ऐड आया जहां पर एक बच्चा स्कूल बस से बाहर निकल कर आता है, बारिश आती है, बेचारा पूरा का पूरा भीग जाता है और जब तक वो घर पर जाता है उसकी मम्मी देखती है, अरे मेरा बेटा तो भीग गया, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, वाहे गुरु आता मी काय करूं? तो विक्स वेपर अप, नाक पे भी लगाओ, गले पर भी लगाओ, छाती पर भी लगाओ, सर पर भी लगाओ। थोड़े टाइम के बाद विक्स बोलेगा पैर पर भी लगाओ, थोड़े टाइम के बाद आएगा जेल के तरह यूज करो। नहीं, ये मजाक था, बट कहने का मतलब पहले विक्स का एक इस्तेमाल था, दैट वाज ऑन द नोज, बट विक्स ने अपना मार्केटिंग बदल दिया, सर्दी जुकाम सरदर्द के लिए विक्स। मतलब बेटा एक ही घर में विक्स जो पहले एक चीज के लिए यूज होता था अब उसके मल्टीपल यूजेस क्रिएट कर दिए बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट दैट दे मेड, बिकॉज ऑफ द वे दे मार्केटेड देयर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ द वे दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट। तो बेटा पहले एक विक्स की डब्बी 1 महीने में खत्म होती थी, अब बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल यूजेस दैट वर क्रिएटेड बाय इट्स मार्केटिंग, नाउ विक्स का डब्बी गेट्स ओवर विद इन 10 days। तो भाई सेल्स बढ़ गया। So beta, can I say innovation is not only in the product but also in the way the product is marketed or sold? बोलो स्वाहा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा ही कुछ चीज हुआ है कोलगेट के साथ। बेटा कोलगेट इंडिया के अंदर आया कुछ 100 साल पहले, बोला कि क्या तुम दातुन वातुन करता है, कोयले से अपना दांत घिसता है, ये सब नहीं करने का, यू शुड यूज अ टूथपेस्ट।
तो इंडियन मार्केट को पूरा बदल दिया बाय इनोवेटिंग द प्रोडक्ट. डोंट यूज कोल, डोंट यूज चारकोल, डोंट यूज दातुन, यूज अ टूथपेस्ट. तो मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लेकर आ गए. अच्छा, अब प्रोडक्ट तो लेकर आ गए, मार्केट में हिट हो गया, चलने लगा, सब लोगों को आदत पड़ गया, पर अब स्टैग्नेंट सेल्स हो गए. अब इस स्टैग्नेंट सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या किया? तो बेटा टूथपेस्ट का जो ओपनिंग होता है ना, वो पहले होता था 1 मिलीमीटर से भी कम. तो वो लोग ने क्या किया, अब बोलते हैं कि उसका हम लोग साइज बड़ा कर देंगे. ओपनिंग ऑफ द टूथपेस्ट का साइज बड़ा करने के वजह से एवरी टाइम यू स्क्वीज इट एक्स्ट्रा पेस्ट निकल जाता है, जिसके वजह से जो टूथपेस्ट पहले 2 महीने में खत्म होता होगा वो शायद अब 1 महीने में होने लगेगा. सेल्स बढ़ गया. अच्छा, नया प्रोडक्ट का यूजेस भी लेकर आए. ये लोग पहले बोलते थे कि दिन में 1 बार ब्रश करो, फिर बोलते हैं रात भर डिशुम डिशुम. मतलब दिन में भी करो, रात में भी करो. 1 बार यूज करने के जगह पर अब 2 बार टूथपेस्ट को यूज करने बोला. मतलब कहना है इसे दैट इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, इनोवेशन उसी के साथ साथ मार्केटिंग में भी होना चाहिए. एंड बेटा कोलगेट इज एन वाइड एग्जांपल ऑफ इनोवेशन. पहले अपने को बोलते थे कि भाई तुम टूथपेस्ट से करो, फिर इंडिया के अंदर देखा जब मार्केट आयुर्वेदिक की तरफ जा रहा है, नेचुरल वेस्ट के तरफ जाता है, तो टूथपेस्ट भी आने लगा. टूथपेस्ट के अंदर भी कोलगेट बोला कि ये ब्लू जेल, ये रेड जेल, ये ऐसा जेल, ये ब्लैक जेल. अच्छा, फिर वो लोग बोले कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे हम पहले नमक से ही करते थे, क्या आपके दिमाग में नमक है? बट कैन आई से दे आर इनोवेटिंग द प्रोडक्ट. पहले नॉर्मल टूथपेस्ट लाए, फिर नमक वाला टूथपेस्ट लाए, फिर चारकोल वाला टूथपेस्ट लाए. मतलब इंडियन मार्केटर्स को वो लोगों ने सारे ऑप्शंस ओपन करके दे दिए. सो प्रोडक्ट के अंदर भी इनोवेशन एंड द वे इट इज मार्केटेड उसके अंदर भी इनोवेशन. एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ entrepreneurship. Now why was I explaining you about entrepreneurship? आप लोग बोलेंगे सर सब्जेक्ट का नाम देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट, और आप हम लोगों को कब से entrepreneurship पे लेक्चर दे रहे हो? अरे बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ entrepreneurship समझना भी जरूरी है, बिकॉज आपको 3 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर entrepreneurship सिनेरियो, दूसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, तीसरा चैप्टर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. सो बेटा why I was explaining you about entrepreneurship is because your very first chapter is about entrepreneurship scenario and what are the efforts that the government is taking to encourage entrepreneurship. The second topic is by the name of business environment, which I'll come to in a very short while. And the third topic is by the name of की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट को मदद करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस. So my dear students, I hope that you all are clear with the word business. Soon we will start with the word environment. So now let us concentrate on the word environment. Beta, what do you mean by the word environment? In simple language, can I say environment is your surroundings. Environment का मतलब क्या होता है? The things which are surrounding us. So beta, when I talk about business environment, please understand that I am talking about the surroundings of the business. Now, what are my surroundings? Can I say air, oxygen, pollution? I am sure they are surroundings for you as well. And don't you think we all get affected by the surroundings that we have? Currently, I am recording this lecture. So, over here, there is an AC, because of which I am not feeling hot and my efficiency is better.
इमेजिन करो बेटा, अगर यही चीज एसी ना होता तो शायद तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट से ज्यादा मेरा पसीना दिखता। अच्छा, मेरा एफिशिएंसी बाहर आता क्या? नहीं आता। मतलब जैसे मेरे सराउंडिंग्स होंगे वैसे ही मेरे बिजनेस का इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो द वे माय सराउंडिंग्स विल अफेक्ट मी, similarly there are certain surroundings of the business which affect its business. The environment will affect the business. Now what is the environment of the business? What is the surrounding of the business? So beta, supplier हो सकता है, competitor हो सकता है, कस्टमर्स हो सकते हैं, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स है। अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, बेटा कैन आई से दैट इंडिया एंड चाइना आर नॉट इन अ गुड प्लेस टुडे? उनके बीच में कांस्टेंट राइवलरी है, कुछ ना कुछ मगजमारी चल रहा है, वी आर हैविंग अ स्टैंड ऑफ विद देम। अब मुझे बताओ, इफ इंडिया एंड चाइना आर नॉट एट गुड relation with each other, will it impact the business? Yes. अच्छा, कुछ के लिए फायदा होगा तो कुछ के लिए नुकसान होगा। इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करने का मौका मिलेगा, बट जो लोग चाइनीज इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है उनका हालत खराब हो जाएगा। मतलब कैन आई से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अलोंग विथ इट सर्टन पॉजिटिव्स एंड सर्टन नेगेटिव्स। किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी तो हो सकता है ना बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स किसका? बिजनेस का। विल बिजनेस सराउंडिंग्स और द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस अफेक्ट इट? यस, इट विल अफेक्ट। Example that I gave was India-China situation. चलो एक और example. Can I say that currently we are facing a pandemic which is by the name of coronavirus. Does coronavirus has an impact on the business? Yes. लॉकडाउन अगर आ गया तो धंधे बंद हो गए। अच्छा, कैन आई से जो लोगों का बंद हुआ उनके लिए नेगेटिव, बट जो लोगों का चालू है उनके लिए लॉटरी। For example, medical stores, grocery stores, for the last couple of years they have been doing really very well. तो कोई कोई इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स है, तो कोई कोई इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव्स है। अब अगर ये कोविड के सिचुएशन में आप में से किसी एक जन को नया धंधा चालू करना है, नया बिजनेस चालू करना है, तो आप मुझे बताओ क्या ये सही टाइम है बिजनेस करने का? सर डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस चलाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप टूरिज्म में जाओगे, होटल इंडस्ट्री में जाओगे, इज दिस द करेक्ट टाइम टू एंटर इनटू टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री? द आंसर इज अ बिग फैट नो, बिकॉज कभी भी लॉकडाउन आ जाता है, कभी भी सिचुएशन खराब हो जाती है, एंड ये इन दोनों इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब कहना है इसे बेटा, सराउंडिंग्स आर नथिंग एल्स बट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस। अच्छा, इसी की जगह पर अगर आप में से कोई बोले सर मेडिकल का दुकान खोलना है तो गो अहेड, गुड प्रोस्पेक्ट्स। कोई बोलेगा कि मुझे सिरिंज बनाना है, सिरिंज फॉर द वैक्सीन, वेरी गुड बिजनेस। मास्क वालों का लॉटरी, सैनिटाइजर्स वालों का लॉटरी, क्योंकि ये सारे बिजनेस अभी डेवलप हो रहे हैं। ए यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? So, when I talk about business environment, it is nothing else but the factors which affect the business. I gave you two situations, one of India, China, and the other of whom can I say COVID-19. And with this, I hope you all are clear with the concept of business environment. Ab, whenever we speak about business environment, so my dear students, बिजनेस एनवायरमेंट दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? टू टाइप्स। ई एन वाई, ये आर है हाँ बेटा, एनवायरमेंट।
So business environment can be of two types. One is internal and the other is external. अब इंटरनल का मतलब होता है विच इज विदिन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है, उनके हाथ में है ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। सो बेटा एक्सटर्नल का मतलब क्या है? इट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने कितने टुकड़ों में बांटा? दो, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म, एक्सटर्नल इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म। ए यस और नो? सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट। तो सवाल ये आता है कि सर विच आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी टर्म्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल? तो इंटरनल के अंदर आ सकता है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। आपके क्या गोल हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये बिजनेस खुद डिसाइड करेगा और उनके कंट्रोल में रहेगा। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। द मैनेजमेंट is within the control of the firm. The human resources that they hire is within the, एक second ना, it is within the control of the firm. So human resources. Then can I say the finance that they use is within the control of the firm. So beta these are certain internal factors which the company, which the business or the organization can control. अब external के अंदर there are two categories beta. In external there is a micro environment and there is a macro environment. Now when I use the word micro and macro, beta economic students will be able to understand. Micro means small and macro means large. So beta micro के अंदर there can be suppliers. Now suppliers are not within my control. They are external factors which the business cannot control. अच्छा, second, can I say that there can be customers? क्या मैं कस्टमर को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। कस्टमर आज मेरे पास आया, कल अगर मेरे पास नहीं आया तो उसको क्या पकड़ कर लेकर आओ? नहीं नहीं, तू कल मेरे पास आया था, आज भी तेरे को मेरे पास ही आना पड़ेगा। नहीं कर सकता ना स्टूडेंट्स। सो कैन आई से दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस and there are certain which are not, like suppliers, customers. Now these are specific factors beta. Now why am I naming them as specific? क्योंकि एक particular टारगेट है, या तो सप्लायर, या तो कस्टमर, या तो कॉम्पिटिटर। मार्केट में अगर कोई नया कंपटीशन आया तो क्या बोलूं? ए ऐसा तू मेरे बिजनेस के साथ गुल्लू गुल्लू करेगा तो तेरे को फोड़ेंगी ना। Do you think that is possible? Can I do that with a competitor who is coming in the market? No, not within my control. I cannot do anything about it. Then what are the other factors? It can be ट्रेड यूनियंस। अब अगर वर्कर लोग स्ट्राइक पर चले गए, मनाने का कोशिश कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, पर अगर जिद पर अड़े रहे तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो बेटा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर माइक्रो एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर मैक्रो। तो अब मैक्रो में क्या क्या आएगा बेटा? मैक्रो के अंदर आ सकता है पॉलिटिकल, फिर आ सकता है इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक, देन सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स,
and there can be another factor which can be legal factors. अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने ये सब के बारे में डिटेल में समझाया, इनके बारे में क्यों नहीं समझाया? आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? जरा भी नहीं, रुको जरा, सब्र करो, बताता हूं. सो मैक्रो external factors are something which I am going to discuss with you all in detail. But before going to that, let us understand what are the features of business environment. तो बेटा, what are the features of business environment? चलो सोचो, मुझे बताओ. What are the features of business environment? Can I say that business environment includes external factors? So बेटा, हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फैक्टर्स भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है. But my dear students, can I say that internal are within the control of the firm? तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या कि हर एक फर्म, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस खुद के हिसाब से मैनेज कर लेगा. सो हमारा पूरा फोकस किस पर रहने वाला है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पर रहने वाला है. Now what can be one of those external factors, beta? Can I say that Nokia was one of the prime phones in India? It was at its peak in the year 2010, probably 11, 12. The best phones. 5 दिन तक बैटरी चलता था, पतला पिन का चार्जर मिल गया तो भगवान मिल गया. और नोकिया के पास एक ऑफर आया था कि आप एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस करो, जिसको नोकिया ने मना कर दिया. अब किसको पता था कि स्मॉल नो फॉर एंड्रॉइड विल कॉस्ट देम देयर एंटायर मोबाइल बिजनेस. बेटा, एंड्रॉइड को लाने वाला आया सैमसंग, और देखो सैमसंग ने रातों रात नोकिया का मार्केट खा लिया. मतलब कैन आई से बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के कंट्रोल में हो ये जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने नोकिया और सैमसंग के एग्जांपल में देखा. सो बेटा, द वेरी फर्स्ट फीचर क्या बोला? दीज आर द फीचर्स ऑफ business environment, and the very first feature is that it includes external factors. So I hope, my dear students, that the very first point is absolutely clear to you all. Now can I say that these external factors were divided into two, micro and macro. So beta, can I say that business environment has a specific factors, micro and general factors? Like what? Like political, economical, environments which are affecting at a macro level are called as general factors. So बेटा, अगर आपने ऊपर concentrate किया होगा, can I say micro can be termed as a specific factors, human factors. Supplier is a human, consumer is a human, competitor is a human, trade union is a human, I am a human, you are a human. So micro factors are human factors, specific factors, whereas मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं उसे हम जनरल फैक्टर्स या नॉन ह्यूमन फैक्टर्स बोलते हैं. सो बेटा, I hope we are clear with what is specific factor and general factor. चलो, let us go to the third example or the third feature. Can I say that business and business environment are interrelated? बिजनेस और उसका एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. क्या आप बिजनेस उसके फैक्टर्स के बिना कर सकते हो? चलो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. टुडे वी इन इंडिया, द यूथ, द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया, इज इट इंस्पायर्ड बाय इंडियन कल्चर? Probably not. So we are inspired by the Western culture, and that is the reason why अपने कंट्री के अंदर बर्गर ज्यादा बिकेगा, फ्रेंच फ्राइज ज्यादा बिकेगा, कोक ज्यादा बिकेगा.
क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हो बाय द वेस्टर्न कल्चर। उसी की जगह पर वड़ा पाव का सेल्स शायद कम होगा, नींबू पानी उतना नहीं बिकेगा, अपने कंट्री का जो ट्रेडिशन है वो हम इतना फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कैन आई से बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर फूड का हैबिट्स में फास्ट फूड चाहिए, कपड़ों के हैबिट्स में वेस्टर्न क्लोथ्स चाहिए। So beta, don't you think that if you want to do business, you will have to consider these facts that current generation does not probably want to wear traditional clothes. और अगर आपको धंधा चालू करना है तो शायद वेस्टर्न क्लोथ्स का धंधा चालू करना will be more beneficial because business and the environment are interrelated. Now, the next point which is there is dynamic. बेटा बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है, बदलता रहता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। डोंट यू थिंक दैट बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो बार बार बदलता रहेगा? 2019 तक सब कुछ चंगा चल रहा था, फिर आया कोरोना वायरस, फिर आया लॉकडाउन, फिर हुआ अनब्लॉक, आज वापस ऐसा सिचुएशन आ गया है कि देयर माइट बी अ लॉकडाउन इन महाराष्ट्र। मतलब जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो बदल रहा है हर घड़ी। So can I say that business environment is never constant? Business environment is always changing. Business environment is dynamic. It changes continuously. Let us go to the next point, beta. Fifth point says that it is complex. Who is complex? Business environment complex है बेटा। business environment है ना सलमान खान जैसा है, दिल में आता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर थोड़े टाइम में वो बदल जाता है और बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल है। Now who would have thought that Facebook will not be as used as it was earlier? आज के डेट में देखो ना बेटा, इंस्टाग्राम हैज टेकन ओवर फेसबुक, ऐसे ही फेसबुक हैड टेकन ओवर ऑर्कुट। ऐसा एक है ना साइट हुआ करता था ऑर्कुट नाम का, जो पहले ऑनलाइन चैटिंग के लिए आता था, बट आज के डेट में किसी को पता भी नहीं है कि ऑर्कुट नाम का कोई चीज होता है। फिर आ गया फेसबुक, फिर आ गया स्नैपचैट या इंस्टाग्राम व्हाटएवर। तो बेटा बिजनेस का एनवायरनमेंट इतना आसान नहीं है। बिजनेस में अगर सरवाइव करना है तो उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली बिजनेस का एनवायरनमेंट इतना आसान नहीं है। सो द फिफ्थ पॉइंट वाज बेटा दैट इट इज कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट? दैट बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टन है। ऑफ कोर्स आज कुछ चल रहा है तो कल कुछ और चलेगा। बेटा कैन आई से कॉम्प्लेक्स के लिए जो एग्जांपल दिया वो अनसर्टन के लिए भी यूज कर सकता हूं। लेट मी गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल। अर्लियर वी यूज्ड टू यूज फ्लॉपी डिस्क, then we came to a pen drive, then to a hard drive, now to Google storage, CD, क्या कुछ नहीं यूज किया। मतलब बिजनेस का एनवायरनमेंट अनसर्टन है। पहले चैट के लिए एक ऐप था जिसका नाम था वी चैट, फिर आ गया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ने टेक ओवर कर लिया, फिर इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया था सिग्नल, एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैज डाउनलोडेड दैट ऐप सिग्नल। सो बेटा बिजनेस का एनवायरनमेंट कितना अनसर्टन है ना, कि किसी एक जन के ट्वीट के वजह से पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन। एंड बेटा द लास्ट पॉइंट इज दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव। Now what do you mean by the word relative? चाचा मामा काका भतीजा? ए नहीं रे, relative means that it will change from company to company, or it will change from country to country, from place to place, time to time. All these things are termed as relative. फॉर एग्जाम्पल कोविड का सिचुएशन, कुछ कंपनीज के लिए लॉटरी तो कुछ कंपनीज के लिए बर्बाद।
कैन आई से दैट रिलेटिव का मतलब कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, तो आज इंडिया का एनवायरमेंट फॉर बिजनेस शायद उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एनवायरमेंट न्यूजीलैंड में मिलता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 7 फीचर्स. चलो एक बार नोट्स देख लेते हैं. आर यू ऑल एबल टू सी द नोट्स? आई होप यू ऑल आर. Let us go to the chapter of business environment. चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है उसका सराउंडिंग्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट refers to external environment. Very clearly we are focusing only on external environment and includes all factors outside which lead to opportunities or threats. Opportunities are positives, threats are negative. Then there is a definition which is given. चलो देखते हैं क्या डिफाइन किया हुआ है, किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है. Over here if you see that according to Keith Davis, ये रहा definition आपका. Business environment is the aggregate of all conditions, events, influences that surround and affect it. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर, इजी है. किसने दिया है? कीथ डेविस. Then there was a person by the name of Andrews. Andrews बोलता है the environment of a company as a pattern of all what? All external influences that affect the business life and the business development. So बेटा 100 बात की एक बात. Business environment are the factors which affect the business. And over here we are clearly speaking only and only about the external factors. Why about the external factors? Because external factors are not within the control of the business. Then we had studied what are the features. So it includes all external factors. There are specific and general factors, but I told you that specific forces are human factors, non-specific forces are non-human factors, general factors are called as non-human. Then we have an interrelation. Yes or no? Can I say that business and its environment are interrelated? फास्ट फूड इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया. अनसर्टन है क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल जाता है. आईटी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बदलता है, फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी बदलता है, मोबाइल फोन का इंडस्ट्री बहुत जल्दी बदलेगा. सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन. उसके बाद हमने क्या देखा कि इट इज डायनामिक, हर घड़ी चलो क्लियर है. फिर कॉम्प्लेक्स, दिल में आता है समझ में नहीं आता है. इट चेंजेस वेरी फास्ट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस एनवायरनमेंट. छोटा सा चेंज क्या रंग लाएगा वो पता नहीं है. जैसे कि एंड्रॉइड के केस में हुआ था, जब नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो पूरा का पूरा धंधा बर्बाद हो गया. एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट इज रिलेटिव. The impact of business environment may differ from company to company, country to country, place to place. Yes or no? So this was the concept of features of business environment. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? What was the concept that you saw? Types of environment, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा पेस्टल. सर पेस्टल आपने नहीं सिखाया, क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो लगता है कि मैंने ऑलरेडी आपको उसके बारे में हिंट दे दिया था. P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर LE लीगल. सो बेटा अब वो वक्त आ गया है जब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस. बेटा पेस्टल मतलब कैन आई से जनरल फैक्टर्स. पेस्टल मतलब नॉन ह्यूमन फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस. और उसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स. यस और नो?
सो बेटा व्हाट आर दीज पॉलिटिकल फैक्टर्स? चलो आप लोग सोचो, मुझे बताओ व्हाट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स. चलो, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स? Does something come to your mind? Sir, can I say that lockdown is a political decision? So the implementation of lockdown will have an impact on the business. पहले सोचा था 15 दिन का लॉकडाउन है, फिर 21 दिन हुआ, फिर 3 महीना हुआ, फिर 4 महीना हुआ, फिर काम पे जाने का मन नहीं हुआ. मतलब कैन आई से पॉलिटिकल फैक्टर्स विल अफेक्ट द बिजनेस. So, over here one example can be lockdown. Recently, Maharashtra government has come up with certain rules and regulations that can affect the business. 8 बजे सब कुछ बंद कर दो, Saturday, Sunday नहीं खुलेगा, वगैरह वगैरह. Then, can I say that there can be tax also? Will tax affect the business? Yes. अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो प्रोड्यूसर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो शायद प्रोड्यूसर्स का सप्लाई कम हो जाएगा, बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा. वैसे ही अगर टैक्स कम कर दिया तो प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा. सो कैन आई से टैक्स कैन अफेक्ट योर बिजनेस. नाउ दिस टैक्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स. सिमिलरली कैन आई से अ सब्सिडी कैन अफेक्ट. Now what is a subsidy beta? Subsidy is nothing else but a grant given by the government. Tax is something which we have to pay to the government. Subsidy उल्टा है, reverse है, government producer को देगा. Now if the government is giving a subsidy, अगर ज्यादा मिलेगा तो आपका cost of production बढ़ जाएगा. Government आपको पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट कॉस्ट रिकवर कर रहा है, आपको ये पैसा अगर गवर्नमेंट से मिला तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, मतलब आपके बिजनेस पे अफेक्ट हुआ. अगर सब्सिडी कम दी तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका सप्लाई कम हो जाएगा. सो बेटा पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक एग्जांपल लॉकडाउन का दिया, एक एग्जांपल टैक्स का दिया, एक एग्जांपल सब्सिडी का दिया, एंड आई होप आई एम क्लियर विद द एग्जांपल. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? इफ यस देन लवली. समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट योर बिजनेस, डिफ्लेशन कैन अफेक्ट योर बिजनेस. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई के वजह से धंधे पे फर्क पड़ेगा ना यार. व्हाट इज इन्फ्लेशन बेटा? कैन आई से दैट इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइसेस and deflation is the general fall in prices. So बेटा inflation और deflation के वजह से धंधे पे अफेक्ट होगा. Can I say business cycle या ट्रेड साइकिल के वजह से भी धंधे पर फर्क पड़ेगा. Now for example this is the trend line economic growth, and बेटा बिजनेस के अंदर there are ups and downs. Now this is called as expansionary phase, this is peak, this is recession, over here is depression, यहाँ पर आया ट्रफ, यहाँ पर आया रिकवरी. तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, कैन आई से दैट अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बेटा इंसान भी तब तक जिंदा होता है जब तक उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे, उसके ईसीजी मशीन पर ऊपर नीचे होगा, तब तक आप जिंदा हो. अगर एक फ्लैट लाइन आ गया मतलब तुम मर गए. तो बेटा बिजनेस भी ऐसा ही है ना, कभी ऊपर तो कभी नीचे. अब जब पीक रहेगा तो माला माल, लॉटरी, धमाल, बहुत पैसा छापोगे. बट ऐसा भी वक्त आ सकता है कोविड के टाइम पर जब देयर इज अ डाउनफॉल इन बिजनेस एक्टिविटी, जिसकी वजह से धंधा खराब हो गया. पर जैसे ही गवर्नमेंट ने अनब्लॉक किया, वापस सब खुलने लगा, तो बेटा देखो वापस रिकवरी होने लगा. सो बेटा इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स पीक.
फिर आया अपने कंट्री के अंदर कोविड, तो डाउनफॉल, और गवर्नमेंट ने जैसे ही सब कुछ ओपन किया, कैन आई से दैट देयर इज अ रिकवरी। सो बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या एग्जांपल्स दिए? इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट बिजनेस, डिफ्लेशन कैन अफेक्ट द बिजनेस, बिजनेस साइकिल कैन अफेक्ट द बिजनेस। ये बोलो यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर PES, S फॉर सोशल फैक्टर्स। सो बेटा सोशल फैक्टर्स में क्या आएगा? ट्रेडिशन आ सकता है, फैशन आ सकता है, टेस्ट आ सकता है, प्रेफरेंस आ सकता है। ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ योर सोशल, सोसाइटी वाले फैक्टर्स। अब पहले के जमाने में बेटा बेल बॉटम जीन्स हुआ करता था, बट आज के जमाने में नैरो बॉटम आया, फिर रिप्ड जीन्स आया, बॉयफ्रेंड जीन्स नाम का भी कोई जीन्स है। मतलब इमेजिन करो बेटा कि फैशन के वजह से बिजनेस पे कितना फर्क पड़ेगा। हर दिन नया फैशन आएगा, तो आपको उसके साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा। आज बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट। आज कोई भी होटल के अंदर आप जाओ, देयर यू विल फाइंड जैन फूड। व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर जैन्स। और बेटा जैन लोग का वांदा होता है, कांदे बटाटे भी नहीं खाते बेचारे, मैं भी उनमें से एक हूं। So, if we do not eat onions, if we do not eat potatoes, we do not eat non-vegetarian food, तो यार हमारे लिए क्या? तो होटल्स के अंदर वो लोगों ने जैन फूड सर्व करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स। सो बेटा कैन आई से कि बेल बॉटम जीन्स से रिप्ड जीन्स, फ्रॉम वेज फूड टू नॉन वेज फूड टू जैन फूड। आजकल एक नए कैटेगरी ऑफ लोग भी है, वीगन्स। दे डू नॉट कंज्यूम प्रोडक्ट्स विच आर मिल्क बेस्ड। तो बेटा उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, और लोग करते हैं। देयर आर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट मेड आउट ऑफ मिल्क एंड देयर आर होटल्स विच सर्व वीगन फूड। सो बेटा देयर आर सर्टन सोशल फैक्टर्स, as I discussed with you all the examples of genes, then about Jain food, non-Jain food, etc. The next factor, बेटा P हो गया, E हो गया, S हो गया, T stands for technological factors. Now what are technological factors? Simple है रे बेटा। पहला ना कंप्यूटर एक रूम के साइज का होता था, आज कंप्यूटर हाथ के साइज का है। तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारा कंप्यूटर है बेटा। टेक्नोलॉजिकली देयर आर सो मेनी चेंजेस। पहले मोबाइल के अंदर आता था ब्लैकबेरी मैसेंजर, हिट हुआ करता था, हिट। आज के डेट में ब्लैकबेरी को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप हैज टेकन ओवर द एंटायर मार्केट। देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी। पहले फेसबुक था, आज इंस्टाग्राम है, कल शायद स्नैपचैट होगा। पहले फेस टू फेस लेक्चर होते थे, अब स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग है। टेक्नोलॉजी बेटा, टेक्नोलॉजी के वजह से आपके इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। नोकिया धंधे से बाहर चला गया क्योंकि उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया। And therefore beta technological factors affect the business. And the last factor, that is by the name of legal factors. बेटा लीगल फैक्टर्स मतलब जो लॉ से है। अगर कोई चीज पर बैन लग गया, जैसे कि मैगी नूडल्स पे बैन लगा, मतलब कहना से उसके अंदर शायद कुछ एलईडी का कंटेंट ज्यादा था, जिसके वजह से देयर वाज अ बैन ऑन मैगी। इट इज अ लीगल फैक्टर। अच्छा बेटा आपको पता होगा एक्टिवा नाम का एक गाड़ी आता है। एक्टिवा में 3G नाम का एक गाड़ी था, जिसके अंदर BS3 का मशीन था या मैकेनिज्म था। तो बेटा गवर्नमेंट ने BS3 को क्या कर दिया? बैन कर दिया। मतलब कहना से क्या ये तरह की गाड़ियां अब रास्ते पर चलेंगी? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज इनको मना करते हैं फ्रॉम बीइंग ऑपरेटेड। सो ऑल द कंपनीज, बेटा नॉट नेसेसरली एक्टिवा, बट देयर आर मेनी कंपनीज हु आर यूजिंग BS3 मशीन। अब अगर गवर्नमेंट ने बैन लाया तो क्या उसका कुछ भी हो सकता है? आज अगर गवर्नमेंट बोलता है कि लॉकडाउन आ गया है, तो बेटा वो पॉलिटिकल फैक्टर है।
बट अगर कोई चीज का बैन लगाया जाता है तो वो लीगल फैक्टर है, लीगली नॉट अलाउड। इंडिया के अंदर ड्रग्स का सेल लीगली नॉट अलाउड। इंडिया के अंदर you are not allowed to sell drugs openly. I hope I am very clear with you all. And my dear students, I hope you have understood what is business, what is entrepreneurship, what is business environment, what are the types of business environment, and in that we have focused on only two things, micro environment, macro environment, और macro के अंदर हमने किया pestle, PESTLE, political and economical, social, technological and legal. So my dear students, I hope we are clear with the concepts, and I hope you had a lovely lecture. Thank you so much. That's it from me.